बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम अपने 5th लेक्चर के साथ दोबारा हाजिर हैं। आप अगर याद करें और पिछले लेक्चर की थोड़ी सी हम समरी ले लें तो हमने लास्ट टाइम नर्वस सिस्टम को डिस्कस किया था और नर्वस सिस्टम के पार्ट्स को डिस्कस किया था और रोल ऑफ नर्वस सिस्टम, रोल ऑफ बायोलॉजी रिलेटेड टू द बिहेवियर हमने डिस्कस किया था। एंड द upcoming lectures are somehow related to that biological basis of behavior। और आज का जो हमारा लेक्चर है that is sensations। sensations basically related है नर्वस सिस्टम के साथ, क्योंकि sensations जैसे कि वर्ड से पता चल रहा है सेंसेस से रिलेटेड है। सेंसेस क्या होते हैं? हवा से खमसा, आपके 5 सेंसेस विच यू ऑलरेडी नो समथिंग अबाउट, कि इन सेंसेस की मदद से हम नर्वस सिस्टम को स्टिमुलेट कर रहे हैं। हमारे सेंसेस आउटर एनवायरनमेंट से कुछ रिसीव करते हैं, उसको फिर प्रोसेस करते हैं, और वो प्रोसेस कहाँ पे करते हैं? वो नर्वस सिस्टम के पास जाता है और उसके नतीजे में हमें कोई हुक्म मिलता है, मैसेज मिलता है। नर्वस सिस्टम का आपने डिटेल पढ़ी थी। कभी स्पाइनल कॉर्ड हमें हमारे मैसेजेस को पहुंचाता है, कभी स्पाइनल कॉर्ड हमें हुक्म कर देता है, बजाय इमरजेंसी सिचुएशंस में बजाय ब्रेन तक पहुंचाने के स्पाइनल कॉर्ड पहले ही हमें कुछ चीज़ों में जो है वो अलर्ट कर देता है। एंड ऑल योर नर्वस सिस्टम इज एक्टिवेटेड थ्रू दीज सेंसेस। जैसे कि हमने वो सेंसरी न्यूरॉन्स पढ़े थे। सेंसरी न्यूरॉन्स आर स्पेशली इम्पॉर्टेंट एंड एसोसिएटेड विद दीज सेंसेशंस विच वी हैव जस्ट टॉक्ड अबाउट। सो how can you just define sensation? The process through which the senses pick up visual, auditory and other sensory stimuli and transmit them to the brain. Sensory information that has registered in the brain but has not been interrupted. Sensation refers to sensing our environment through touch, taste, sight, sound and smell. This information is sent to our brain and that's when परसेप्शन कम्स इनटू प्ले। जैसे कि आप इस फिगर पे देख रहे हैं, हमारे 5 सेंसेस हैं। साइट रिलेटेड टू योर आईज, हेयरिंग रिलेटेड टू योर एयर। एयर इज अ ऑर्गन, दिस काइंड ऑफ ऑर्गन इज हैविंग स्पेशलाइज्ड सेंसरी न्यूरॉन्स रिलेटेड टू हेयरिंग, टेस्ट, टच एंड स्मेल। सो दीज आर द 5 senses having specialized sensory neurons and specialized sensory organs। हर organ related है किसी एक खास सेंस के साथ। आपकी स्किन रिलेटेड है टच के साथ, आपके हाथ, स्किन आपकी, अपर लेयर आपकी, दिस इज ऑल रिलेटेड विद द फीलिंग ऑफ कोल्डनेस, वार्मनेस, प्रेशर etc. Hearing is related with your ear. Your ear is having so many specialized sensory neurons which are taking the signal from the air and just through some process it is taking signal to brain and transmitting the signal from air. Sensory nerves are especially associated with your hearing thing. So लेट्स सी के सेंसेशंस जो हैं वो किस किस तरीके से हमें एक छोटी सी हम एक मूवी देखते हैं, एक वीडियो देखते हैं जिसमें हम 5 सेंसेस को डिस्कस करेंगे। We enjoy everything around us because we have all 5 sense organs. We use our eyes to see things around us. Can you see the boy watching his favorite TV show? The boy can see the beautiful rainbow with his eyes. There are people that cannot see. They are called blind. We use our ears to hear sounds around us. The boy can hear the music with his ears. The boy can hear the ringing bell using his ears. There are people that cannot hear. They are called deaf. We use our nose to smell things around us. The nose helps the boy to smell the burning wood. The boy can smell the fresh fragrance of the flower using his nose.
We use our tongue to taste things that we eat. Look, the boy is licking a lemon with his tongue. It is sour in taste. Now he is eating a candy. It tastes sweet. We use our tongue to taste things that we eat. The sense of touch helps us to feel things all around. The boy can feel the harshness of a brush on his hand. The boy can feel the cold ice on his hand. Can you recall all 5 sense organs now? Eyes, ears, nose, tongue, and skin. जैसे कि आपने इस मूवी में देखा कि हमारे 5 सेंसेस डिस्कस हुए और ये 5 सेंसेस आपको भी पता हैं और इनको हम थोड़ा सा इलैबोरेट करते हैं. इस प्रोसेस को जानिए कि सेंसेशन प्रोसेस है क्या. व्हाट बिफोर इलैबोरेटिंग these senses we will understand the sensation process. Sensation is the process by which our senses gather information and send it to the brain. A large amount of information is being sensed at any one time, such as room temperature, brightness of the lights, someone talking, a distant train, or the smell of perfume. With all this information coming into our senses, the majority of our world never gets recognized. क्या समझ आया? हमारे पास इस वक्त हम पैरेलल सेंसिंग कर रहे हैं. राइट नाउ फॉर एग्जांपल इस वक्त आप मेरी आवाज़ सुन रहे हैं और इस आवाज़ के दौरान आपके कोई दरवाज़ा खोल के अंदर आता है. मेरी पूरे सेंटेंस सुनते हुए आप उस पर एक नज़र डालते हैं और एक नज़र डालने के बाद आपकी आंखों ने भी सेंस कर लिया, आपके एयर्स ने भी सेंस की मेरी आवाज़ और आंखों ने क्या सेंस किया, किसी शख्स को आपने पहचाना कि अच्छा ये आपका क्लास फेलो आया है और वो अपनी सीट पर बैठ गया. ड्यूरिंग दिस आपके एयर ने 2 चीज़ें सेंस की, एक मेरा लेक्चर और एक दरवाज़ा खुलने की आवाज़. इतनी सारी चीज़ें यू आर सेंसिंग एट द सेम टाइम. सो आपने ये सारी इंफॉर्मेशन ब्रेन में भेज दी और इस सारी इंफॉर्मेशन में आपके तमाम सेंसेस, तमाम न्यूरॉन्स जो कि रिलेटेड थे इस पर्टिकुलर जिस रूम सेटिंग में आप बैठे हैं इसको परसीव करने के, इसको सेंस करने के लिए वो मौजूद थे. आपके सेंसरी न्यूरॉन्स जिन्होंने अपने अपने ऑर्गन्स को यूज़ करते हुए आपके ऑर्गन्स पे वो स्टिमुलेंट आया और उसने उसको रिसीव किया सिग्नल को और उस सिग्नल को ब्रेन को भेजा और ब्रेन को ने इसको परसीव, जो कि परसेप्शन अभी हम आगे पढ़ेंगे. नेक्स्ट अपना हमारा लेक्चर परसेप्शन का है. उसको आपने जो है उन सिग्नल्स को समझते हुए आप एक प्रोसेस में को एक्सप्लेन करने के काबिल हो सकते हैं. तो ड्यूरिंग द लेक्चर ये प्रोसेसेस आपके साथ हो रहे हैं. आफ्टर द लेक्चर मैं आपसे पूछती हूँ कि आपने क्या क्या कुछ नोटिस किया, तो आप बताएंगे कि हमने ये नोटिस किया, लेकिन आप बहुत कुछ भूल गए. आपको पता है कि आप जिस जगह पे बैठे हैं उस रूम में कितने स्विच बोर्ड लगे हुए हैं, कितने बटन्स हैं पीछे उस स्विच बोर्ड के ऊपर या आगे, उसको आपने अटेंशन नहीं दी या वो आपके सेंसेस के जो है जिसको कहते हैं फोकस में नहीं आया, तो आपने उसका सिग्नल रिसीव ही नहीं किया. लेकिन जैसे ही मैंने आपको ये बात कही आपकी निगाह हो सकता है स्विच बोर्ड की तरफ चली गई हो. यानी फोकस में लाना भी ज़रूरी होता है. किसी एक खास फोकस में जब वो आ जाएगा तो वो आपके जिसको हमने लास्ट अपने लेक्चर में डिस्कस किया था कि एक थ्रेशहोल्ड, मिनिमम थ्रेशहोल्ड रिक्वायर्ड होता है किसी भी चीज़ को परसीव करने के लिए या सेंस करने के लिए. तो सिमिलरली हमारे 5 सेंसेस भी तभी काम करते हैं जैसे मैंने लास्ट लेक्चर में टेस्ट बड की एग्जांपल दी थी. सेंसरी रिसेप्टर्स, specialized cells in the sense organs that detect and respond to sensory stimuli. Light, sound, odors, and transduce the stimuli into neural impulses. स्पेशलाइज सेल्स हैं जो सेंस ऑर्गन्स में मौजूद हैं. अब आप देखें कि कितनी सारी चीज़ें हैं. एक सेंसरी न्यूरॉन्स हैं, फिर उनमें स्पेशलाइज सेल्स हैं इन द सेंस ऑर्गन दैट डिटेक्ट एंड रिस्पॉन्ड टू सेंसरी स्टिमुलाई, जैसे कि लाइट है, साउंड है, स्मेल्स हैं, और उनको फिर वो कन्वर्ट करती है
द स्टिमुला इनटू न्यूरल इम्पल्स। उस स्टिमुलस को पहले रिसीव करती है, फिर उनको न्यूरल इम्पल्स जो हमने लास्ट लेक्चर में स्टडी की थी कि व्हाट इज अ न्यूरल इम्पल्स, उसमें कन्वर्ट करती है और फिर वो मैसेज की इम्पल्स की सूरत में वो मैसेज जो है वो ब्रेन तक जाता है। इट प्रोवाइड द एसेंशियल लिंक बिटवीन द फिजिकल सेंसरी वर्ल्ड एंड द ब्रेन। So what is transduction? जो अभी हमने वर्ड यूज किया, it is actually the conversion. The process where the receptors change or convert the sensory stimulation into neural impulse is transduction. जैसे कि जो भी मैसेज आया उसको एक इम्पल्स की फॉर्म में, करंट की फॉर्म में, जो हमने लास्ट टाइम एक्शन पोटेंशियल पढ़ा है उस फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं ये स्पेशलाइज्ड सेल्स और वो ब्रेन तक मैसेज को भेजते हैं। जैसे आप ये डायग्राम में देख रहे हैं कि सेंट्रल नर्वस तक किस किस तरीके से कहाँ सेंसेस से मैसेजेस आ रहे हैं और वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में जा रहे हैं। वंस अगेन, हाउ दिस सेंसेशन अकर। नाउ ये पूरा ऑफ कोर्स केस रिसीव करने से लेके मैसेज अंदर जाने तक छोटा सा जो प्रोसेस मैंने आपको बताया, एक तो ये कि वो नर्व इम्पल्स में बदल के और उसके बाद उस मैसेज को पहुंचाया जाता है। किस तरह से एक्चुअली ये प्रोसेस के स्टेप्स हैं वो उनको हम जरा देखते हैं। सेंसरी ऑर्गन्स एब्जॉर्ब एनर्जी फ्रॉम अ फिजिकल स्टिमुलस इन द एनवायरनमेंट। Sensory receptors convert this energy into neural impulses and send them to the brain. ठीक है, ये लास्ट लेक्चर में भी हमने डिस्कस किया है। जैसे कि ख़ास किस्म का स्पेशलाइज, ये आप देख रहे हैं कि इस स्लाइड में भी आप देख रहे हैं कि जो स्पेशलाइज्ड ऑर्गन्स हैं, जिस काम के लिए जो ऑर्गन है वो एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहा है। पहले ये देखें, रॉड, विजन के साथ रॉड्स का कॉन्सेप्ट है। रॉड इज एसोसिएटेड विद विजन विच इज इन द आई। कोन भी आई के साथ रिलेटेड है, कोन एंड रॉड्स। हेयरिंग के साथ आप देख रहे हैं कि एयर ड्रम बना हुआ है, एयर बना हुआ है। सिमिलरली हर चीज के साथ कोई ना कोई चीज एसोसिएटेड है। और आप इसमें सेंसरी रिसेप्टर्स जो हैं वो इस तरह के स्पेशलाइज्ड सेल्स में मौजूद हैं और वो रिसेप्टर्स जो हैं वो कन्वर्ट कर रहे हैं आपकी एनर्जी को न्यूरल इम्पल्स में। देयर आर 5 सेंसेस। अभी जैसे मूवी में भी आपने देखा, सेंस ऑफ टच है, फीलिंग है, सेंस ऑफ साइट था, सेंस ऑफ टेस्ट, सेंस ऑफ स्मेल, सेंस ऑफ हेयरिंग। हम एक एक करके इन तमाम सेंसेस को डिस्कस करेंगे। The sense of touch or feeling is regarded by psychologists as the elementary sense. The sense of touch or feeling operates by means of certain nerves which have their endings in the outer covering or skin of the body and also in the internal organism of the body. These nerves report to the mind their contact with outside objects and in some cases certain changes of state or condition in the body itself. By means of this sense, we are able to become aware of the size, form, shape, hardness, roughness, elasticity of an object. Physical characteristics are also involved by which we distinguish one material object from another by means of respective reaction to our sense of touch or feeling. The mechanism of the sense of touch or feeling is composed of many different and varied classes of nerve channels. The sense of touch or feeling is really a composite sense manifesting diverse activities, principal among which are those of pressure, temperature, muscular resistance, pain, contact. हम एक मूवी देखते हैं जिसमें आपको ये ज़्यादा क्लियर होगा कि हम इस सेंस ऑफ टच को एक्सप्लेन करते हैं इस मूवी के ज़रिए। लेट्स सी। When you feel something, you use your sense of touch. But touch is more than this. From head to toe, you feel the sense of touch through the entire surface of your skin. You can feel the hot and cold, pain and pressure, all through your skin. Skin is where it all starts. Your skin has many layers. The innermost layer is called dermis. Dermis has millions of nerve endings. These nerves can send and receive information to your spinal cord and brain. The spinal cord and the brain can tell you what to do next. Let me tell you something else. Touch is not just one sensation. It's 4 sensations. The sensation of warmth,
and the sensation of cold. The sensation of pressure, which tells us whether a thing is soft, smooth, or rough to the touch. And finally, the sensation of pain, which can alert us to dangers. Oh no, not again! You're lucky it didn't sting you on your face. You see, not every part of your body is equally sensitive to touch. Some places, like your fingertips, face, and lips, have more nerve endings than others, so they can feel more than others. जैसा कि आपने इस मूवी में देखा कि किस तरह से हमारी स्किन की लेयर्स हैं और जो आपकी अपर मोस्ट लेयर है सबसे वो एपिडर्मिस है, फिर डर्मिस आ जाती है और उसके बाद हमें नर्व एंडिंग्स मिलती हैं. नर्व एंडिंग्स जो हैं वो डर्मिस जो है वो रिसेप्टर है, रिसीव करती है और उसके बाद हमारी नर्व एंडिंग से वो मैसेज जो है वो ब्रेन तक जाता है. एंड देन वी फील द सेंस ऑफ टच. अगर हम और टच की जो सेंसेशन है इसमें व्हाट वी कैन फील, वी हैव आइदर वी विल फील कोल्ड, टेम्परेचर हॉट होगा या कोल्ड होगा, हम टेम्परेचर को फील कर सकते हैं, हम प्रेशर को फील कर सकते हैं और हम पेन को फील कर सकते हैं, वार्मथ एंड कोल्ड को फील कर सकते हैं. सो दिस इज हाउ वी आर टेकिंग दिस काइंड ऑफ सेंसेशन. और इसके बाद सेंस ऑफ साइट आ जाता है. व्हाट इज सेंस ऑफ sight? Sense of seeing या sense of sight. The sense of sight regarded by psychologists as an evolution of the elementary sense of touch or feeling. इसी की evolution है. Is regarded by the best authorities as the highest in the scale of the evolved senses. The sense of sight operates by means of registering the sensations of the intensity of the light waves and the color vibrations thereof. The eye does not touch or feel the outside objects in order to see them. Instead, it touches or feels the vibrations of the light waves coming in contact with the nervous matter of the organ of sight. किस तरह से ये है कि हम ना हाथ लगा सकते हैं, ना हम टच करके देख रहे हैं, ना हम उसको फील कर रहे हैं. द ओनली वे वी आर फीलिंग इट, गेटिंग द, जिसको आप कहते हैं कि हमारी आई जो है वो सेंसेशन उसमें तब होती है जब थ्रू लाइट वेव्स हम उसको जो है देख सकते हैं. कैसे? लाइट वेव्स आपकी आंख तक पहुंचती हैं और आपको मैसेज देती हैं और आपके ब्रेन में जाता है. द ह्यूमन आई इज द ऑर्गन विच गिव्स अस द सेंस ऑफ साइट, allowing us to learn more about the surrounding world than we do with any of the other four senses. We use our eyes in almost every activity we perform, whether reading, working, watching television, writing a letter, driving a car, and in countless other ways. Let's see a video about it. बड़ी इंटरेस्टिंग सी वीडियो है, इसको देखें आप कि किस तरह इसमें आपको स्ट्रक्चर बताएंगे आई का और किस तरह से क्या प्रोसेस है जिसके जरिए हम देख सकते हैं. Do you see it? Well then, let's talk about seeing. Seeing is another of our senses that is amazingly sophisticated. We look, see, and watch the world around us, yet we never stop to think how. Well, yes, it is obvious that our eyes do the seeing part, but how exactly? Did you ever wonder about your sense of sight and how it works? I'll show you. Your eye is almost like a ball. The dark circle in the center of your eye is called an iris. The small black spot in its center is called the pupil. Very well. The pupil is like a window of a room. It can open wide or shut narrow to let just the right amount of light come inside the eye. You can see it yourself. Go to a dark room and your pupil becomes bigger to allow more light in. If you move to a well-lit place, the iris will shrink to allow only the required amount of light in. This light passes through the cornea, the aqueous humor, and lens to fall onto the retina. The retina is a super-sensitive surface with lots of optic nerve endings. These nerves take the upside-down image from the retina to the brain, which must first invert it and then make sense of it. The pupil and the lens continuously keep adjusting so that you can see the most clear image of the world. For some people, these adjustments are not enough, but these problems can easily be corrected using glasses. So, if you need them, get them. And if you already have glasses, well, then wear them. That's smart.
आप लोगों ने वीडियो देखी, आपको समझ आई कि किस तरह से आई का स्ट्रक्चर होता है. इट इज़ कंपोज्ड ऑफ आइरिस, प्यूपल, कॉर्निया, रेटिना. और सबसे पहले जो है वो आपकी लाइट वेव्स आपके आइरिस से टकराती हैं, फिर आपके प्यूपल पे जाती हैं. प्यूपल का काम एक विंडो की तरह होता है. विंडो बिल्कुल इस तरह के जैसे जब वो खुल सकती है, बंद हो सकती है, और उसके वो जो है आपके लिए उसके बाद कॉर्निया में आपकी वेव्स जो है लाइट वेव्स को पहुंचाया जाता है. कॉर्निया से वो रेटिना में आती हैं जहां आपके पास अपसाइड डाउन इमेज आता है, और उधर से वो ट्रेवल करता हुआ नर्व इम्पल्स के जरिए, आपने जैसे उसमें देखा था मूवी में, किस तरह से वो ब्रेन की तरफ चला जाता है. विद इन मोमेंट्स ये काम हो जाता है, इसमें कोई ब्रेक नहीं आता, और यू कैन सी मल्टीपल थिंग्स अराउंड यू. सो दिस इज हाउ योर sense of sight is working, and sense of sight is actually in having some kind of process. Similarly, sense of taste आता है आपका. sense of taste क्या है? सबसे इंटरेस्टिंग सेंस ही आपका सेंस ऑफ टेस्ट है. The sense of taste, another evolved sense, manifest by means of certain nerves terminating in tiny cells of the tongue known as taste buds. The latter are stimulated chemically by objects brought in contact with them, the impulse being conveyed to the nerves and by them transmitted to the brain. Physiologists classify the sensations of taste into 5 classes. कौन कौन सी 5 है? Sweet, sour, bitter, salty and hot, as in the case of pepper. पेपर का क्या टेस्ट होता है? अभी हम एक वीडियो देखेंगे, उसके बाद हम बताएंगे कि जब आपका कोई ना सॉल्टी टेस्ट आ रहा हो, ना बिटर टेस्ट आ रहा हो, ना सावर टेस्ट आ रहा हो, ना स्वीट टेस्ट आ रहा हो, तो उस टेस्ट को हम क्या कहते हैं? उस टेस्ट को हम कहते हैं उमामी टेस्ट. तो पेपर का, और इन केस ऑफ टोमेटो, आई थिंक टोमेटो इज हैविंग अ उमामी टेस्ट. So let's discuss one by one. जैसे कि अभी मैंने आपको बताया, सॉल्टी टेस्ट, सावर टेस्ट, स्वीट टेस्ट और बिटर टेस्ट में हम उसको क्लासिफाई कर सकते हैं टेस्ट को. अच्छा, आप ये बताएं कि ये टंग का स्ट्रक्चर है, जिसमें ये आप जो डायग्राम देख रहे हैं, इसमें आप ये देखें कि डिफरेंट एरियाज हैं जिसमें रिसेप्टर्स हैं डिफरेंट, और कितने तकरीबन आपके अंदर रिसेप्टर्स होंगे अंदाज़ा लगा सकते हैं आपके कितनी आपके सेंसरी न्यूरॉन्स हैं, जो कि जिसको आप कहते हैं जिधर टेस्ट बड्स हैं आपकी, कितनी टेस्ट बड्स आपकी टंग के ऊपर होंगी जो कि ये सारे जो टेस्ट हैं इनको एक्सपीरियंस कर रही हैं. सो हमारी इस वक्त मोर देन 100,000 टेस्ट बड्स हैं जो हमारे टंग के ऊपर और नीचे की तरफ हर तरफ मौजूद है, जो कि आपके टेस्ट को जो है वो उसको कोई ना कोई नाम देते हैं, आइदर इट इज सॉल्टी, सावर, स्वीट और बिटर. सेंस ऑफ स्मेल, इसका ताल्लुक आपकी नोज से है. द सेंस ऑफ स्मेल, जस्ट लाइक द सेंस ऑफ टेस्ट, इज अ केमिकल सेंस. They are called chemical senses because they detect chemicals in the environment, with the difference being that smell works at dramatically larger distances than that of taste. ठीक है, समझ आती है ना? खुशबू जो है, कोई भी खुशबू या आपको बैड स्मेल है या जिसके भी किस्म की, वो थोड़ी दूर से भी आ सकती है, करीब से भी आ सकती है, और ये द वे यू आर सेंसिंग इट इज थ्रू योर नोज. द सेंस ऑफ स्मेल is another evolved sense, manifest by means of delicate nerves terminating in the mucous membrane of the nostrils. The latter registering contact with minute particles of material objects entering the nostrils and also registering differences in the chemical composition of such particles. The message of the nerve ends being transmitted to the brain. The particles of the smelled object must have actually entered the nostrils and have come in contact with these nerve ends in order to have been sensed. अब आपको ज़्यादा अच्छा समझ आएगा जब हम एक मूवी देखेंगे. आप इस मूवी को देखें, इस वीडियो को देखें, और उसके बाद आप इसको समझें, and you will be much more clear than this slide. Let's see the movie. That's smart. So what is the next sense you want to learn about today? Of course, the sense of taste. Your favorite, isn't it?
Humans have a very developed sense of taste. We love to eat varied flavors. We are also the only living things that artificially flavor and cook our food to enhance its taste, aren't we? We can detect these flavors thanks to the taste buds on our tongues. Let's take a closer look at your tongue. Can you guess how many taste buds we have on our tongues? Not even close. We have around 100,000 taste buds located on the front and back of our tongue. Okay, now guess this. How many tastes can your tongue detect? Wrong again. Actually, there are only a few basic tastes that can be detected by our buds, mainly being salty, sweet, bitter, sour, and umami. Confused by umami? It means meaty or savory, as in fish or ripe tomatoes. When you eat something, the saliva in your mouth breaks down the food, and the taste buds sense the basic tastes. This message is sent to the brain, which then detects the right flavor. Hold on there. Did you know that your sense of taste is incomplete without your sense of smell? Well, smell and taste go hand in hand. Our sense of smell is mainly provided by our nose. Your nose smells the molecules in the air and sends these messages to your brain. The brain can then tell you what you are smelling. As humans, our sense of smell is very poor. Many animals are blessed with a much keener sense of smell than us. When you eat something, the smell of the food plays a big role in detecting the right flavor of the food. In fact, without smelling, your apple and a pear would taste exactly the same. आप लोगों ने ये मूवी देखी, इसमें जो एग्जांपल उन्होंने दिखाई हुई है वो ये है कि आप लोगों ने ये देखा कि जी आप किस तरह से ये वाले टेस्ट आप कर रहे हैं, और उमामी टेस्ट भी एक टेस्ट है जिसमें कि आप नहीं कह पा रहे कि ना ये सॉल्टी है, ना ये स्वीट है, और ना ही ये सावर है, तो फिर हम उसको एक टेस्ट का नाम दिया हुआ है उमामी टेस्ट. फॉर एग्जांपल पेपर और टोमेटो जो हैं दे मे बी कॉल्ड एज उमामी टेस्ट, नॉट sour, not salty, not bitter, not sweet. And जो है हमारी जो स्मेल है उसमें हमने बताया कि जी किस तरह से हर स्पीशीज जो है उसकी सेंस ऑफ स्मेल इज डिफरेंट फ्रॉम अदर स्पीशीज. ह्यूमन की इज नॉट दैट मच स्पेशलाइज्ड एज ऑफ इट इज इन एनिमल्स. तो इस तरह से ये सेंसेस हैं. नाउ द सेंस ऑफ हेयरिंग. The sense of hearing is another evolved sense, manifest by means of delicate nerve terminating in the inner part of the ear. The eardrum or tympanum vibrates in response to the air vibrations or sound waves, reaching it from the outside. These vibrations are intensified and the auditory nerve ends take up the impression and pass it on to the brain. Sound waves are sensed according to their characteristics of pitch, intensity, quality and harmony. Sensory processing जो है that is actually the process which is involved when sensory input is coming or that sensory receptors are stimulated. और ये हमारे हर सेंस के साथ ये हो रहा है कि सेंसरी रिसेप्टर्स जो हैं वो स्टिमुलेट होते हैं जिस भी सेंस के साथ की तरफ वो आते हैं. फॉर एग्जांपल टच की सेंस के साथ रिलेटेड है, हॉटनेस, कोल्डनेस और प्रेशर, और स्किन के साथ ये रिलेटेड है, वहाँ पे कुछ आपके सेंसरी न्यूरॉन्स हैं, सेंसरी रिसेप्टर्स हैं विच आर स्टिमुलेटेड और देन दे आर प्रोसेस्ड विच इज एक्चुअली सेंसरी इंफॉर्मेशन इज ऑर्गेनाइज्ड एंड इंटरप्रेटेड, स्टोर्ड एंड रिलेटेड टू प्रीवियस एक्सपीरियंसेस, और फिर रिस्पॉन्स इज जनरेटेड. रिस्पॉन्स क्या होगा? आपको कुछ याद आया? रिस्पॉन्स बिहेवियर होता है. कोई भी रिस्पॉन्स इज जनरेटेड, लेकिन वो रिस्पॉन्स आइदर नर्वस सिस्टम आपको मैसेज भेजता है, उसके नतीजे में एक नजर आने वाला बिहेवियर है जो कि फॉर एग्जांपल आपने बहुत गर्म चीज पे हाथ रख लिया और आपके ब्रेन ने आपको मैसेज किया कि जल्दी से हाथ को हटा लिया जाए, तो आप हटा लेंगे. दैट इज द रिस्पॉन्स. सो दिस इज हाउ सेंसरी इनपुट्स थ्रू सम प्रोसेस क्रिएट्स अ रिस्पॉन्स. सो समटाइम्स बिहेवियर की अकरेंस के लिए जरूरी है कि कोई सेंसरी इनपुट है, और सेंसरी इनपुट चेंज भी हो सकते हैं, दूसरे भी हो सकते हैं, कम या ज़्यादा भी हो सकते हैं, और जिसके नतीजे में जो रिस्पॉन्स है वो भी चेंज हो सकता है, कम या ज़्यादा हो सकता है और वेरी भी कर सकता है. तो नाउ रिमेंबर माय फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड लेक्चर इन विच वी वर टॉकिंग अबाउट एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी, जिसमें कि हम बिहेवियर
का ताल्लुक किसी स्टिमुलस से, कॉज से ढूंढ रहे थे, कॉज एंड इफेक्ट को मालूम कर रहे थे. अब व्हाट इज द कॉज हियर फॉर प्रोड्यूसिंग एनी काइंड ऑफ बिहेवियर? दैट द कॉज कैन बी a sensation of some sensory receptors. That could be through seeing, through touching, through hearing, through smell, or through your taste buds. Whatever it is, there might be a response through some process. So this is how sensory process can be explained. Sensory processing involves the brain's ability to organize and make sense of different kinds of sensation entering the brain at the same time. Sensory processing underlies the development of all motor and social skills and the ability to learn and perform complex adaptive behaviors. It relies on effective functioning of the brain stem. कहाँ होती है brain stem? It lies between the spinal cord and higher centers of the brain. याद है hypothalamus कहाँ था? कहीं उसी के करीब होती है. We are all aware of the senses of sight, hearing, taste and smell. अब हम सब जान गए ना ये कौन से 5 सेंसेस हैं, हम पहले भी जानते थे लेकिन इनको हमने थोड़ा सा डिटेल में पढ़ा है. But sensory processing involves 3 additional specialized sensory systems which are very powerful and influence how effectively we detect and make sense of information to enable us to feel safe and secure, to direct and sustain our attention, to move without fear, and to use our bodies automatically to perform the myriad of motor tasks we take for granted throughout a normal daily routine. देखा कितना सारा काम है जो आप पैरेलल टास्किंग के साथ कर रहे हैं just due to the presence of these senses. See the diagram and you may understand it much better. Sense organs हैं आपके सेंटर में और आप ये देख रहे हैं कि आईज लाइट सिग्नल ले रही हैं और एयर्स आपके साउंड सिग्नल्स ले रहे हैं, नोज स्मेल से रिलेटेड है, टंग टेस्ट से रिलेटेड है और स्किन टच प्रेशर और टेम्परेचर से रिलेटेड है. और ये सारा प्रोसेस आपका चल रहा है ड्यू टू द रिसेप्शन रिसीविंग ऑफ द स्टिमुलस फ्रॉम द आउटसाइड वर्ल्ड. नाउ कम्स द vision. Vision is a stimulus for vision is light which travels in waves. The amplitude wave that is the wave की जो height होती है उसको कहते हैं amplitude, is associated with the sensory experience of brightness. The wavelength determines the color of the light and the wave purity. इसका क्या मतलब है? Whether there is more than one type of wave, ठीक है, produces the psychological experience of saturation. विजन आपका इससे रिलेटेड है. लेट्स सी विजन सिस्टम में क्या क्या चीजें होती हैं जी. कॉर्निया, लेंस, आइरिस. द क्लियर फ्रंट विंडो ऑफ द आई, द कॉर्निया ट्रांसमिट्स एंड फोकसेस लाइट इनटू द आई. फोकस करती है लाइट को आई के अंदर. लेंस इज द ट्रांसपेरेंट स्ट्रक्चर इनसाइड द आई दैट फोकसेस लाइट रेज ऑन टू द रेटिना. द कलर्ड पार्ट ऑफ द आई, द आइरिस हेल्प्स रेगुलेट द लाइट दैट एंटर्स द आई. ठीक है, ये इसके फंक्शंस हो गए. Pupil क्या कर रहा है? The dark center in the middle of the iris. The pupil determines how much light is let into the eye. It changes sizes to accommodate for the amount of light that is available. Retina. Nerve layer that lines the back of the eye. The retina senses light and creates impulses that are sent through the optic nerve to the brain. Optic nerve के जरिए, optic nerve is related to the eye और ये स्पेशलाइज नर्व है जो कि ब्रेन को फिर मैसेज देती है. जैसे कि अभी हमने बताया ना, अपसाइड डाउन इमेज को वो लेके और उसके बाद वो आगे ब्रेन में भेजती है जहाँ पर उसकी परसेप्शन होती है और उसको रिसीव किया जाता है और फिर परसीव करते हुए, मीनिंग देते हुए एक रिस्पॉन्स आता है. Vision system is comprised of 2 more structures, that is rods and cones, which are part of retina. जिसको कि हम देखते हैं कि क्या है. rods क्या कर रहे हैं? rods in the rods the light travels to the eye and passes through the cornea. The pupil regulated in size by the iris and the lens and then moves to the retina, where it strikes the photoreceptors for vision, the cones and the rods. Cones. The cones in the center, these are in the center of the retina, are responsible for color vision.
ठीक है, एंड ऑपरेट बेस्ट इन इंटेंस इल्यूमिनेशन। अब मुझे ये बताएं कि अगर किसी को कलर ब्लाइंडनेस होती है तो कौन से पार्ट में डिफेक्ट होता है? कलर ब्लाइंडनेस होती क्या चीज़ है? यू कैन नॉट रिकग्नाइज सम कलर्स, you are unable to recognize some colors. Some people are having total color blindness. They can see only the things into black and white. But most of the people who are color blind have some specific colors जिनको कि वो नहीं देख सकते. Green को वो नहीं देख सकते. Green उनके लिए black या white है sometimes. तो कोन्स में कोई भी खराबी होती है, या अगर खराबी हो जाए या अगर वो खराबी ही के साथ पैदा हुए हों किसी भी किस्म की, तो दे माइट बी कलर ब्लाइंड। और कोन्स का ताल्लुक कलर्स के डिफ्रेंशिएट करने से होता है। रॉड्स आर इम्पॉर्टेंट टू सी इन एट नाइट, so it is important in night vision and peripheral vision and have a greater density at the edge of the retina. Visual information proceeds from the eye through optic nerves attached to, अभी हमने बात की थी ना optic nerve की, it is which are attached to the retina at the back of each eye. Now what is the process involved in seeing things? What rods are doing are that they allow humans to see in black, white and shades of grey in dim light, mostly in the periphery. Take 20 to 30 minutes to fully adapt to darkness. क्या होगा फिर? आप जब रात के टाइम पर जो है वो काफ़ी देर तक अंधेरे में रहेंगे, थोड़ा सा टाइम लगता है आपको फोकस करके चीज़ों को अंडरस्टैंड करने में। इमीडिएटली आप किसी कमरे में बैठे हुए हैं, इमीडिएटली लाइट चली जाती है तो आप बिल्कुल नहीं देख पाते, लेकिन कुछ सेकंड्स, कुछ देर के बाद यू कैन सी फ्यू थिंग्स अराउंड यू because a bit of light is coming from outside. If the window is, there is any window inside a room and you are sitting in a room, एक थोड़ी सी कहीं से लाइट आ रही है और थोड़ा सा आपको इमेजेस क्लियर हो रहे हैं, तो आप उस वक्त फोकस करके और थोड़ा सा करीब से ये जज कर पाएंगे कि यहाँ पर मैं किस तरह से स्ट्रेट चल सकता हूँ। फिर आप यूजुअली व्हाट यू कैन डू इज़ दैट कि आपके जिस वक्त लाइट फर्स्ट करें चली जाती है तो आपके बाकी सेंसेस भी कुछ ना कुछ परसीव करते हैं। आपने हाथ के ज़रिए, टच सेंसेशन के ज़रिए ये देखते हैं कि आपके आगे कोई चीज़ तो नहीं आ गई अगर आपको चल के कहीं तक जाना है, और अपनी प्रायर लर्निंग को यूज़ करते हुए आप या राइट या लेफ़्ट हो जाते हैं और अपने हाथ को आगे बढ़ा के और टच के उससे, जैसे आप चल रहे हैं और आपके आगे कोई सोफ़ा आ गया तो आप उसको हाथ से फील करेंगे कि ये सोफ़ा है, और ये वो जो सोफ़ा मैंने देखा था वो जो यहाँ पड़ा हुआ था इस कमरे में, ये वो वाली चीज़ है। सिमिलरली अगर आप किसी नई सिचुएशन में हैं तो आपकी प्रायर लर्निंग नहीं हुई है उस जगह के साथ, लेकिन फिर भी आप अपने हाथ के ज़रिए, टच सेंसेशन के ज़रिए फील करते हुए रॉड्स को देख, अपनी रॉड्स के रात का क्योंकि अमल में ये काम आ रही है आपके, तो रॉड्स आपकी जो हैं वो थोड़ी सी आपको अगर साइट अगर आपको हल्की सी, जिसको आप शेड्स कहते हैं, नज़र आ रहा है तो वो ब्लैक एंड वाइट में आपको उसका नज़र आ रहा है, और दैट इज़ जस्ट बिकॉज कि आपकी रॉड्स उस वक्त एक्टिव हैं। कोन्स इनेबल ह्यूमंस टू सी कलर एंड फाइंड डिटेल इन एडिक्वेट लाइट, बट दैट डू नॉट फंक्शन इन डिम लाइट में वो फंक्शन ही नहीं करते। रॉड्स जो है उसका और इसका डिफरेंस ही यही है, वो जब नाइट होती है, रात होती है, देन दे आर एबल टू फंक्शन और उसमें वो जो है अपना काम करती है। मोस्टली इन द फोविया अडेप्ट fully to darkness in 2 to 3 minutes। ठीक है, जो मैंने अभी पीछे बात की ना कि आपके कोन्स जो है उसको टाइम लगता है, 2 से 3 मिनट लगते हैं अडेप्ट करने में डार्कनेस को, क्योंकि और उसमें भी डेफिनेटली चूँकि डार्कनेस है तो वो उसका कलर नहीं जज करती, वो उसके कलर को नहीं बता सकती कि कौन से कलर की चीज़ रखी हुई है सामने। ट्रिक्रोमैटिक थ्योरी। What is trichromatic theory? It is first proposed by Thomas Young in 1802 and modified by Hermann von Helmholtz about 50 years later. The theory of color vision suggesting that there are 3 types of cones which are maximally sensitive to red, green or blue, जो primary colors होते हैं ना आपके, उससे वो sensitive है, and that varying levels of activity in these receptors can produce all of the colors. और इसमें जो एक्टिविटी हो रही है ये सारे कलर्स आपके जज किए जा रहे हैं और ये कलर्स आपके हम परसीव कर रहे होते हैं, यानी हमारी आंखें परसीव कर रही होती हैं। ट्रिकोमेटिक थ्योरी जो है, इट इज़ लाइक कोन्स, एस कोन्स
की जो टाइप है स्पेशलाइज जो कोन्स हैं एस, एम और एल, वो एक टाइप है जो ब्लू को परसीव कर रही है, ब्लू के लिए सेंसिटिव है. अदर इज एम कोन्स दैट इज सेंसिटिव टुवर्ड्स ग्रीन कलर. एल कोन्स आर सेंसिटिव टुवर्ड्स द blue color. Now the hue, saturation and the brightness, they are related. The property of light commonly referred to as color, determined primarily by the wavelength of light reflected from a surface. Saturation is the degree to which light waves producing a color are of the same wavelength, the purity of a color. And the brightness is the dimension of visual sensation that is dependent on the intensity of light reflected from a surface and that corresponds to the amplitude of the light wave. ये थोड़ा सा टेक्निकल सा टॉपिक है आपके लिए, और हर चीज़ को ये समझने का मकसद सिर्फ ये है कि हम ये सारी चीज़ें बिहेवियर से किस तरह रिलेट की जा रही हैं. मुझे पता है कि आपके जहन में ये क्वेश्चन आएगा कि हाउ दिस इज रिलेटेड विद साइकोलॉजी. तो जैसे कि मैंने आपको पिछले लेक्चर में भी बताया है, मैं फिर बता देती हूँ कि हर आपकी बायोलॉजिकल रीजंस आर द बेसिस फॉर क्रिएटिंग सम बिहेवियर, सो दैट्स व्हाई वी आर स्टडीइंग इट. ठीक है, ये देखें आपकी ये स्लाइड है जो कि ह्यू, सैचुरेशन एंड ब्राइटनेस को डिस्क्राइब कर रही है कि ये आपके सैचुरेशन चेंजेस देखें किस तरह आ रहे हैं. और उसमें फर्स्ट उसमें फिगर में आप देख रहे हैं कि तमाम कलर्स मौजूद हैं अपने उसमें, लेकिन फिर सैचुरेशन चेंजेस देखें और फिर ब्राइटनेस चेंजेस देखें कि किस तरह से चेंज हो रहे हैं. नाउ इन दिस स्लाइड यू कैन सी दैट हाउ मेनी कोन्स एंड हाउ मेनी रॉड्स आर लोकेटेड एट विच एरिया, और उनका नंबर क्या है. नंबर ऑफ कोन्स 6 मिलियन और टोटल नंबर, और रॉड्स 120 मिलियन. और लोकेशन इन रेटिना के सेंटर में होते हैं कोन्स, और पेरिफेरी में रॉड्स मौजूद हैं. सेंसिटिविटी इन डिम लाइट में क्या होगा, कोन्स लो होगी सेंसिटिविटी में और रॉड्स हाई हो जाएंगी. कलर सेंसिटिव कोन्स यस और रॉड्स नो. ऑडिशन, द सेंस ऑफ hearing. Audition comes from the root word audio, which means sounds. ठीक है, इट मे बी पैसिव और एक्टिव. पैसिव भी है और एक्टिव भी है. किस तरह, हेयरिंग या लिसनिंग. ऑडिशन इज इम्पॉर्टेंट इन प्रूविंग और प्रोवाइडिंग फीडबैक फॉर द माइंड एज वेल बैलेंस ऑफ द बॉडी. आपको इसकी इम्पोर्टेंस का तो अंदाजा है ही. लेट्स सी अ वीडियो in which they are explaining this process in a very much detailed manner. The ear has three parts: the outer ear or auricle, the middle ear, and the inner ear. The auricle, the visible part of the ear, collects sound waves and directs them to the auditory canal. The auditory or ear canal is lined with cilia and ceruminous glands. The earwax from the ceruminous gland and the cilia protect the ear from entry by foreign matter. The thin tympanic membrane separates the outer ear from the middle ear. Sound waves cause it to vibrate. The three tiny bones of the middle ear are the hammer or malleus, anvil or incus, and stapes or stirrup. These bones pick up the vibrations from the tympanic membrane and transmit them to the inner ear. The eustachian tube of the middle ear opens into the pharynx and permits air pressure to equalize between the ear and the outside air. The inner ear is maze-like, consisting of bony and membranous structures surrounded by fluid. The semicircular canals are fluid-filled bony loops that help maintain our body's balance. The cochlea is a fluid-filled, snail-shaped structure that houses the organ of Corti, the true organ of hearing. The fluid aids in the transmission of the vibrations. The organ of Corti changes the vibrations into nerve impulses that are picked up by the auditory nerve. Sound waves are collected by the auricle or outer ear and sent to the auditory canal, tympanic membrane, ear bones, and then to the cochlea, where the vibrations are changed by the organ of Corti to nerve impulses and transmitted by the auditory or cochlear nerve to the temporal lobe of the brain for interpretation. आप लोगों ने इसकी वीडियो देखी एंड यू मस्ट बी नोइंग दैट हाउ मच व्हाट इज़ द प्रोसेस इन्वॉल्व्ड इन द मिडल एयर, इनर एयर, कॉक्लिया, क्या चीज़ें हैं ये. ठीक है, इसको थोड़ा सा हम एक्सप्लेन भी करते हैं कि मिडल एरिया जो है वो दैट इज़ अ चैम्बर बिटवीन एयर ड्रम एंड कॉक्लिया containing 3 tiny bones, hammer, anvil, stirrup,
that concentrate the vibrations of the eardrum on the cochlea's oval window. Inner ear क्या चीज़ है भाई? Innermost part of the ear containing the cochlea, semicircular canals and vestibular sacs. Cochlea is a coiled bony fluid filled tube, is an auditory portion of the inner ear. अभी आपने मूवी में देखा था ना किस तरह से जो है बोनी फ्लूइड फिल्ड ट्यूब थी, एक जो फ्लूइड में से साउंड वेव्स गुजर रही थी, वो आपने देखा था कि किस तरह से वो उस फ्लूइड से जो है वो अंदर साउंड वेव्स गुजर रही थी. लेट्स सी के एम्पलीट्यूड, फ्रीक्वेंसी और डेसिबल, हाउ व्हाट आर द रोल ऑफ दीज टर्म्स इन हेयरिंग. तो पहले देखते हैं फ्रीक्वेंसी क्या है. फ्रीक्वेंसी इज द ह्यूमन ईयर कैन हेयर साउंड फ्रीक्वेंसीज फ्रॉम लो bass tones of around 20 hertz to high pitched sounds of about 20,000 hertz. ठीक है, ये थोड़ा सा टेक्निकल हो गया आज का लेक्चर, बट डोंट वरी, ये हमारा बड़ा इंटरेस्टिंग हो रहा है आगे जाके. और नेक्स्ट टॉपिक इंशाल्लाह इसका आप थोड़ा सा हमारा जिसमें कहते हैं कि इंटरेक्शन भी हो जाएगा. और आप लोगों को लेकिन टेक्निकलिटीज़ बताना इसलिए ज़रूरी है कि बार बार मैं आपको ये बता रही हूँ कि बिहेवियर के साथ हम किस तरह इन चीज़ों को रिलेट कर रहे हैं. तो हम अब बताते हैं आपको कि व्हाट इज द एम्पलीट्यूड. द मैग्नीट्यूड और इंटेंसिटी ऑफ अ साउंड वेव विच द एयर कैन हेयर इज कॉल्ड एज एम्पलीट्यूड. अच्छा, डेसिबल, अ यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ द इंटेंसिटी और लाउडनेस ऑफ साउंड बेस्ड ऑन द एम्पलीट्यूड ऑफ द साउंड वेव इज एक्चुअली द डेसिबल. ये थोड़ा सा ये आपको मालूम होना चाहिए चीज़ें. आपको कोई ये नहीं कह रहा कि इनको रट्टा लगाएं, लेकिन यू मस्ट बी नोइंग व्हाट इज एम्पलीट्यूड, व्हाट इज डेसिबल एंड व्हाट इज इंटेंसिटी. ठीक है. Now in this figure you can see what are the psychological responses to various sound intensities. Just see इसका डेसिबल स्केल देखें. हमने बताया था ना अभी लास्ट स्लाइड में आपको कि डेसिबल इज अ यूनिट जिस पर कि हम उसको जो मेजर कर रहे हैं, लिख रहे हैं कि कितना क्या यूनिट है उसका. तो थ्रेशोल्ड ऑफ सिवियर पेन, पेनफुली लाउड, 140 उसका डेसिबल स्केल पर मेजर कर रहे हैं हम. वेरी अनोइंग साउंड, prolonged exposure produces damage to hearing. ये देखें आगे आप देखते जाएं कि कौन कौन सी साउंड्स ऐसी हैं जो कि अनोइंग है और जो कि जिनका के एम्पलीट्यूड डेसिबल स्केल पे जो एम्पलीट्यूड है वो क्या आ रहा है. लेट्स सी. और ये एग्जांपल जैसे जहाज की साउंड है, किस डेसिबल स्केल पर आ रही है वो 120 के तकरीबन. जेट टेक ऑफ एट 200 फीट पर, अगर हमारा डिस्टेंस 200 फीट हो और जेट टेक ऑफ कर रहा हो तो इट व्हाट इज द डेसिबल, व्हाट इज द एम्पलीट्यूड ऑन डेसिबल स्केल, इट इज 120 डेसिबल स्केल पे. ठीक है ना. तो इसी तरह डिफरेंट आप समझें कि नीचे 0 से शुरू हो रहा है और 140 तक जा रहा है, और थ्रेशोल्ड ऑफ हेयरिंग पे हम डिफरेंट साउंड्स देख रहे हैं कि किस डेसिबल स्केल पे वो लाई कर रही हैं. So these are two kind of theories जो कि बनी है हेयरिंग के ऊपर. और एक प्लेस थ्योरी जो कि प्लेस के रिलेटिवली उसको मेजर कर रहे हैं हम, और एक फ्रीक्वेंसी के हाउ with what rate of nerve impulse it is traveling to the from the auditory nerve to the brain, उसकी क्या फ्रीक्वेंसी है और कि हम उसको एनेबल कर रहे हैं, उसको सेंस कर रहे हैं. इनेबलिंग टू अस टू सेंस इट्स पिच. सेंसरी इंटरेक्शन क्या चीज़ होती है? इट इज़ द प्रिंसिपल दैट वन सेंस मे इन्फ्लुएंस अनदर एज व्हेन द स्मेल ऑफ फूड इन्फ्लुएंसेस इट्स टेस्ट. ठीक है. एक जापान में मेरे एक्सपीरियंस के दौरान, वहाँ पे लिविंग के दौरान, 7 years ऑफ लिविंग इन जापान, आई फाउंड कि उनके पास एक टर्म थी जिसका मतलब ये था कि हम जो है खाना ऐसा पकाएं कि उसको खाने से पहले, टेस्ट बड पे लाने से पहले आंखों से खाया जाए. इसका क्या मतलब है? अच्छा, हम जो बात कर रहे हैं, जो मैं आपको स्लाइड पर जो लिखा हुआ है, द प्रिंसिपल दैट वन सेंस मे इन्फ्लुएंस अनदर एज व्हेन द स्मेल, हमने स्मेल की बात की है कि स्मेल ऑफ फूड इन्फ्लुएंसेस इट्स टेस्ट. स्मेल अच्छा होगा तो टेस्ट भी अच्छा लग रहा होता है और वो पहले ही इन्फ्लुएंस कर देता है. लेकिन हमने आंखों से खाने का सबसे पहले जापान में सुना. तो मैंने उनकी प्रेजेंटेशंस देखी तो उनका मतलब ये था कि वो देखने में इतना अच्छा लगे कि वो खाने में भी अच्छा लगे. तो एक सेंस दूसरी सेंस को इन्फ्लुएंस कर रही है. बट मोस्ट ऑफ द टाइम हमारी स्मेल सेंस जो है वो, खाने के मामले में मैं बात कर रही हूँ, खाने के मामले में ये कि स्मेल सेंस हमारे फूड के टेस्ट को बेटर या बिटर या व्हाटएवर बुरा कर रही है या अच्छा कर रही है. ठीक है ना.
सो यू मस्ट हैव सीन कि हमारे सेंसेस किस तरह एक दूसरे की इंटरेक्शन के साथ काम कर रहे होते हैं, एक दूसरे पे इन्फ्लुएंस कर रहे होते हैं, ठीक है। और यू मस्ट हैव स्टडीड इन टुडेज लेक्चर कि जी हमारी कौन सी 5 सेंसेस हैं और सबके अंडरलाइंग प्रिंसिपल क्या है। अंडरलाइंग प्रिंसिपल ये है कि जो हमने पिछले लेक्चर में भी पढ़ा था कि आपके सेंसरी जो है न्यूरॉन्स वो स्टिमुलेट हो रहे हैं, जो कि हर सेंस पे मौजूद हैं इन अ फॉर्म, और स्पेशलाइज्ड सेल्स में मौजूद हैं जो कि आपको स्टिमुलेट करते हैं इन अ फॉर्म ऑफ नर्व इम्पल्स, मैसेज लेके ब्रेन तक जाते हैं। पांचों सेंसेस से एक नई चीज़ आपको रिस्पांस एक नया मिलता है। पांचों सेंसेस आपके बेसिकली इन्वॉल्व हैं आपके रिस्पांस को जनरेट करने में किसी भी किस्म के। सो टू कंक्लूड वी कैन से कि हमारी sensations जो हैं they are based on our 5 senses and every sense is related to some organ, 5 organs, basic 5 organs that is like related to your सेंसेस, और जो वो ऑर्गन्स हैं जो कि आपको एक्सटर्नल वर्ल्ड से जो है इंटरनल वर्ल्ड को आपके जिसको कहते हैं कि इंटरलिंक कर रहे हैं, कनेक्ट कर रहे हैं। सो दिस इज हाउ 5 senses are giving you a meaning, a behavior, a response, और cause जो है वो कोई भी हो सकती है जो कि आपके सेंसेस में से किसी एक सेंस पर या 4 सेंसों पर या 5 पर इकट्ठे एक वक्त में भी अमल कर सकती है। एंड विद दिस इंटरैक्शन, सेंसरी इंटरैक्शन, वी आर एबल टू रिस्पॉन्ड टू particular thing, particular way, particular manner. So this was all about today's lecture, and inshallah we will be back again with the next topic, that is perception. Sensation and perception are very closely related. Let's see how much you can just what you can relate with sensation and perception, what you will able to relate between 3 chapters. That is, जो मैं आपको कहना चाह रही हूँ वो ये कि 3 आपके बेसिकली हम बायोलॉजिकल बेसिस ऑफ बिहेवियर से शुरू हुए थे ना, बायोलॉजिकल बेसिस ऑफ बिहेवियर, सेंसेशन और परसेप्शन, और उसके बाद हम एक चैप्टर पढ़ेंगे मेमोरी। ये सब आपस में किस तरह से रिलेटेड हैं। तो बायोलॉजिकल बेसिस ऑफ बिहेवियर के बाद सेंसेशंस और उसके बाद परसेप्शन। इंशाल्लाह फिर हाजिर होंगे परसेप्शंस के साथ। ओके, अल्लाह हाफिज़।